سے لے کے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ مالک ہیں جی آپ. اچھا میں بڑے دکھ اور کرب سے یہ ایک کلپ آپ کو سناؤں گا. ابھی ہم شاہد اللہ خان صاحب کا غم بالکل نہیں بھولے تھے, یہ کاکڑ صاحب والا جو غم ہے. پہلے ایک چھوٹا سا میں کلپ سناؤں گا, وہ جو بالکل ان کا آخری جو سپیچ تھی میرے خیال میں اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ ہے, اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں بات کریں گے. پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈرا ہو جائیں, قومی حقوق سے وڈرا ہو جائیں, اور آپ جو ہے اپنے نظریات سے وڈرا ہو جائیں. آپ جو ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر لیں, آئین کی بات چھوڑ دیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات چھوڑ دیں. جو ہم کرتے ہیں اس سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں. نہیں کر سکتا ہوں, بالکل نہیں کر سکتا ہوں. چاہے میری جان چلی جائے, میری جان اتنی عزیز نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے, میری قوم مجھے عزیز ہے, میری عوام مجھے عزیز ہے, مجھے سیاست مجھے عزیز. تو مجھے اشارے مل رہے ہیں, مجھے پیغامات مل رہے ہیں. میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں, میرے بچوں کو کچھ ہوا, میرے خاندان کو کچھ ہوا, کوئی پرواہ نہیں, میں ریکارڈ نہیں. مگر اس کی ذمہ دار جو دو اہم انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں بہت سخت غصے میں تھے جب وہ کچھ بتانے آیا یا کہنے آیا کہ ہاتھ ہلکا رکھیں, تو آپ نے دیکھا. بس میں اب اس پہ سوال کیا کروں, کاکڑ صاحب کی موت نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر اس پاکستانی کو جن کی وہ آواز تھے, وہ ضروری نہیں بلوچستان سے, قلعہ سیف اللہ سے یا کوئٹہ سے, پورے پاکستان سے وہ آواز, وہ امید ختم ہوئی. اور پختون تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا. ان کے آخری الفاظ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ میری جان عزیز نہیں ہے. بہت شکوک و شباہت کیے جا رہے ہیں, ان کے اہل خانہ اس پہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ کاکڑ صاحب کی اس ناگہانی موت پر؟ دیکھیں عثمان خان کاکڑ صاحب, میں آپ کے پروگرام پہ شاید میں نے کہا تھا کہ جب وہ سینٹ میں دوبارہ ان کو جگہ نہیں ملی تو مجھے بڑا افسوس ہوا, جی کیونکہ سینٹ بہت ویران, پرویز رشید صاحب کے بغیر, مشاہد اللہ صاحب کے بغیر. تو میں تو اس سینٹ سے, بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہ جمہوریت کا جہاد کر رہے تھے اور اکیلا کر رہے تھے. عثمان خان کاکڑ صاحب کی جو سب سے مطلب, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تو سارا آفس اور میرا جو سارا سٹاف ہے وہ پشتون نہیں ہے. کچھ گلگت بلتستان سے لوگ ہیں, پنجاب سے ہیں, لیا سے ہیں, لاوا سے ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں تو ان کا کریئر فالو کر رہی تھی, اور مجھے پہلی دفعہ جب افسوس ہوا, شمع جنیجو صاحبہ ہماری دوست ہیں, تو انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کچھ سال پہلے کیا. اور جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے ان سب نے مجھے ہو بہو ایک ہی بات کی ہے اس شخص کے بارے میں. ہم نے تو ان کو پارلیمنٹ میں دلیری سے, بہادری سے بات کرتے ہوئے دیکھا, لیکن مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ کوئی سندھی ان کے پاس جائے, کوئی گلگت سے بندہ جائے, کوئی چلاس سے بندہ جائے, کوئی ہنگو سے بندہ جائے, بلوچ جائے, پشتون جائے, وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ کس نے بھیجا ہے. میرے آفس سے جن لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, مجھے نہیں پتا تھا. یہ تو میرے تو آفس میں لڑکے واپس آ کے جو خبر آئی تو مجھے بتایا کہ ہم نے دروازہ بند کر کے بیٹھ کے روئے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ فون کیا, مجھے یہاں پہ مل گئے, کسی نے کہا کہ میرا کام تھا. میں نے کہا تمہارا کیا کام تھا؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ریحام خان اگر آپ سے رابطہ کرے, یا کوئی اور سینئر جرنلسٹ یا کوئی پولیٹیکل شخص آپ سے رابطہ کرے, آپ اس کی عزت کریں گے. پتہ انسان کے کردار کا تب چلتا ہے جب کوئی ان نون ینگ لڑکا, کوئی ینگ پولیٹیکل کارکن, کوئی بیچارہ, کوئی لاوارث شخص, کوئی بیوہ جب آپ سے رابطہ کرے اور آپ نہ جانتے ہو, آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو, آپ اس کی بات سنیں, آپ اس کو عزت دیں اور آپ اس کا کام کریں اگر اس کا حق جائز کام ہو. تو ہر جگہ سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں, یعنی کہ جو ہم نے ان کو پارلیمنٹ پہ دیکھا ہے وہی مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ, کیونکہ میں پارلیمنٹ میں دیکھتی تھی کہ یہ شخص کیا, میں نے انفیکٹ ٹویٹ بھی کیا کہ یہ جو زبردست ایک مطلب ہماری سینٹ کی خوش نصیبی ہے. اور میں سمجھتی تھی کہ مطلب یہ سینٹ میں کیوں نہیں ہے, بالکل صحت مند, ماشاء اللہ فٹ اور وجیح جس کو کہتے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی
हम तो उनको बहुत ज्यादा यंग समझते थे, जी इंतहाई शरीफ, मतलब इंतहाई शरीफ शख्स जो कि ना कोई फजूल बात करना। देख खवातीन के लिए ये बात हम झिझक होती है, हिचकिचाते हैं लोगों से बात करते हुए। आप यकीन करें कि इतना उनका जो ब्रदरली रवैया, शफकत वाला रवैया, ना कोई फजूल इधर उधर की बात करनी। और मैं पार्लियामेंट में देखूं तो कभी वो बलोच राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी पश्तून राइट्स की बात कर रहे हैं, हर इशू के बारे में बात कर रहे हैं, और उनका हमसे कोई राब्ता नहीं किसी से। मैं पूछूं कि क्यों कर रहा है बंदा हर बात पे। ये होती है जमहूरियत, कि सिर्फ वो बात ना करना जिसका आपको कहा जाए कि करो। और मैं समझती हूँ कि हम पार्लियामेंट हमारी, आप यकीन करें, यतीम हो गई है, यतीम हो गई है, कि सेनेट खास तौर पे बिल्कुल यतीम हो गया। और मैं इतनी डिप्रेस थी, मुझे इतना अफसोस था। कम देखिए, हम लोग रोज फौतगियों की बात आती है, हम देखते हैं, दुआओं के लिए जाते हैं, अफसोस करते हैं। कम ऐसे होता है कि आपकी दिल से दुआ निकलती है। मैंने जब फोन देखा, जब उनकी उनकी खबर आ रही थी, तो मुझे पता था कि उनकी खबर, जब जो ही खबर आई तो मैंने अपने पीए को कहा, मैंने कहा ये नहीं बचते, ये मेरा तो दिल में ऐसा है कि ये तो ऐसे ही, कुछ सही नहीं हुआ। ऐसे ही, तो बिल्कुल जब ठीक। मैंने उस लड़के की फोन देखा तो आप यकीन करें मैंने नहीं उठाया, मैं सुनना नहीं चाहती थी। लगता है कि घर का कोई फर्द, उसका इंतकाल हुआ है, दिल से हमने उनके लिए दुआ की है। पर एक जो देखिए ना, जो अजीम लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो उनकी मौत में भी एक असर होता है, अपना पैगाम। वो अगर लोग सोच रहे हैं कि उस्मान खान काकड़ की आवाज खत्म हो गई है, उन्होंने एक नई नौजवान नस्ल को जो उनसे मिल के आई हैं। हमारे पास एक लड़का है जो कि पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहता है, तो अक्सर वो मुझे कहे कि आप फौजियों के बारे में ना बात किया करें, आप इमरान के बारे में बात ना किया करें, आप ये ना किया करें, पॉलिटिक्स के बारे में जरा मुझे प्रैक्टिकल एडवाइस सलाह देता था। तो कभी इसके साथ फोटो, कभी उसके साथ फोटो। अब मैं उसको समझाती रही, लेकिन जो एक मर्द रोल मॉडल होता है ना, जो एक बाप की जगह होता है, जो एक बड़े की जगह होता है, मर्द को मर्द ही रोल मॉडल ज्यादा असर करता है। उस लड़के ने मुझे कहा, जब हम आपस में अफसोस कर रहे थे, उसने कहा, मैम लेकिन इंसान को मौत आए तो ऐसे कि बंदा हो किला सैफुल्ला से, डेथ उसकी कराची में हो, आप लंदन में रो रही हो, मैं इधर इस्लामाबाद में बैठा रो रहा हूँ, लड़का हंगू में बैठ के रो रहा हो। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। और मेरे ऐसे मुझे फील हुआ कि उनकी जाने में भी, यानी कि वो शख्स इतने लोगों को इंस्पायर करके चला गया है, सबक दे के चला गया है। क्योंकि मैं अपनी तरफ बहुत डिप्रेस बैठी थी कि अब कौन करेगा हमारी बात पार्लियामेंट में, अब कौन ये मुद्दा उठाएगा, अब कौन कहेगा कि मुझे अपनी कौम अजीज है, मुझे अपनी जान अजीज नहीं, बड़ी बात है। और ये करके दिखा दिया। और उन लोगों को जो जो देखें, क्यों सस्पिशन होती है, मैं, आप सच पूछें, मुझे तो पता भी नहीं कि वाकयात क्या हुए, मैंने तो देखा भी नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन सस्पिशन इसलिए होती है, आप शक इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी रियासत ने आपको कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि जिसकी वजह से आप एतमाद और एतबार और तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सकें। एक पॉलिटिकल लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेनिंग करते हुए 100 दफ़ा सोच रही है, उसके बारे में आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं पाकिस्तान वापस जाने की बात करती हूँ तो आप यकीन करें कि मुझे बड़े बड़े लोग जो कि कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं कि बीबी अभी मत जाएं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो नहीं, मत जाएं। मैं हैरान होती हूँ क्यों ये खौफ की फिजा है। तो जब खौफ की फिजा होती है ना, तो चाहे अगर वाकई कोई तबई मौत भी हो, लेकिन शक की गुंजाइश पैदा होती है, क्योंकि आपने माहौल ऐसा कर दिया है। आपने किसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है? किसी एक सहाफ़ी को आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। एक छोटे से यंग लड़के को जिसने अभी अपनी यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसके घर में अंदर आके घुस के 3 बंदे मार के, और सीसीटीवी पे जब पकड़े जाएंगे तो उसकी कौन गवाही देगा? उसका तोता गवाही देगा, कौन गवाही देने वाला है? तो आज अगर उनके खानदान, लोग कह रहे हैं कि 6 दिन के बाद, वो क्यों कह रहे हैं, ओ भाई जिसके घर में डेथ हुई हो, और अगर वाकई कोई ऐसे हालात हो, तो क्या उनको अपने बच्चों की, अपने बाकी रिश्तेदारों का खौफ नहीं होगा? जरा सोचिए तो सही। मैं, यकीन करे परवेज साहब, मैं दिल में ये सोच रही थी कि अल्लाह करे कि ये कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस ना हो, कि ये तबई, जितना तकलीफ दे है, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुदरती और तबई अगर मौत होगी तो हमें
कम से कम दिल तो पाकिस्तान से नहीं उठेगा कि ये क्या मुल्क है। आप समझ रहे हैं कि हम अगर, ये हमारे लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग बात है कि एक शख्स की आवाज आपको मतलब गुंजाइश नहीं है, एक निहत्ते शख्स से आप इतने थ्रेटन हो रहे हैं। तो मैं तो ये लोगों को कह रही थी कि मैं तो मेरा तो दिल ही टूट गया है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मोहसिन कुछ कौम है। अगर ऐसा है तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, कि क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, इसने बड़े दुख उठाए हैं। हम पहले भी 2 लख्त हुए हैं, लेकिन हमने दोबारा न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया, हमने दोबारा अपने पैरों पे भी अपने आप को खड़ा कर लिया। हमने ज़िया के दौर में, मुशर्रफ के दौर के बाद हमने 10 साल जमहूरियत के भी गुजारे। हमने जीडीपी को 6% तक पहुंचा दिया था। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इसमें कितने लोगों की कुर्बानियां और कितने लोगों का लहू गया है, बड़ी मोहब्बतें हैं हमें। तो मैं तो, आप यकीन करें कि अगर ऐसा है कि हर एक को ही आप मार डालना चाहते हैं, हर एक की आवाज़ आप दबा देना चाहते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ? क्या उस्मान काकड़ साहब जो अपने बच्चों को यतीम कर गए हैं, किस लिए करके गए हैं? क्या अपनी जाती मकान के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए करके गए हैं? कौम के लिए करके गए हैं ना, और बगैर किसी तासुब के करके गए हैं। पश्तून थे लेकिन बलोच अवाम के लिए आवाज बने ना, हर एक के लिए आवाज उन्होंने उठाई, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाई। तो अगर हम आज ये नहीं समझेंगे कि हमें वो जो बची खुची गिनती की आवाजें रह गई हैं, उनको हमें सेनेट में पहुंचाना है, सेनेट में उनको रखना है, उनकी हिफाजत करनी है, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारी अख्तार की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूरी दुनिया को ये इस्लामोफोबिया सिखाएंगे। इस्लामोफोबिया तो ये फैला रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। जब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं, जब ये गाली गलूच करते हैं, जब ये एक वहशी दरिंदों की तरह हरकत करते हैं, तो लोग हमें देखते हैं तो कौन से हम इस्लाम का बहुत अच्छा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं? आप दुनिया को कह रहे हैं कि इस्लाम की इज्जत करो, तौहीन रसालत मत करो, हमारी आयात की रिस्पेक्ट करो। तो आप बजट में जो कॉपियां मुंह पे मार रहे थे, जिस हॉल में आप खड़े थे जहां अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है, जिस बजट कॉपी पे आपका, यही आपको पता नहीं है कि एक मुसलमान अपना हर काम जब आगाज करता है तो किस तरह आगाज करता है, अल्लाह पाक का मुबारक नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के। तो आपको तो ये भी नहीं दिखाई देता। आप तो इतने अंधे हो गए हैं कि हमारे सामने तो आपको शर्म हया नहीं है, लेकिन आपको तो अल्लाह पाक के हुजूर या हमारे महबूब नबी, हमारे एक ऐसे नबी की जिसकी मिसालें दुनिया देती हैं, आखिरी नबी की मिसालें पूरी दुनिया देती हैं, आपको तो तौफीक नहीं कि आप उनका नाम खातिमुल नबीन ले सकें, आपको उनके नाम की तहरीम नहीं कि आप पूरी तरह से हौसले से सांस लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सके। आप तो जिस तरीके, तो बात यह है कि या तो आप हमें सबूत दें कि आपको पाकिस्तानी इक़्तिदार, इस्लामी इक़्तिदार की सबसे अच्छा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं, फिर छोटे छोटे कपड़ों की बात करें। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पता है अभी तक हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने उस्मान काकड़ सेनेटर साहब की जो मौत है उस पर अभी तक अफसोस का इजहार तक नहीं किया। इससे ज्यादा बेहिसी और क्या हो सकती है? और वो जैसे आपने कहा कि वो सबके लिए आवाज उठाते थे, वैसे आपने बात कर दी, लेकिन ये 15 सेकंड का क्लिप मैं जरूर चलाऊंगा, ये सुनिए जरा। वो सबके लिए लीडर है, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है मियां नवाज शरीफ साहब, उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। मीडिया पे जो है हुक्मरान पार्टी के लोग जो हैं, बाज एंकर जो हैं, ये तो इनामेज रवैये सबके लिए आवाज उठाते थे। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल इसके बाद कोई सवाल करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अभी अभी एक अपडेट आई है, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद इस तरह इस मुल्क के लिए
بولنا جو آزادی ہے جو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں یا آپ بیٹھ کے کر رہی ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, اس پہ ہم بول سکتے ہیں, ہم سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے